So welcome guys, welcome again to my channel, and this is the third video for the September 2021 current affairs. Hope you have enjoyed other two videos which I uploaded earlier. So let us continue. Which of the following states has made temple land grabbing a non-bailable offense? So the state here in question is Tamil Nadu. तमिल नाडु ने जो है वो टेम्पल लैंड ग्रैबिंग को एक नॉन बेलेबल ऑफेंस का दर्जा दिया है। तो इसको हम याद ऐसे रखेंगे कि अगर किसी ने ये ऑफेंस किया तो तमिलनाडु गवर्नमेंट उस केस में बेल नहीं देगी, बेल नहीं मिलेगी। तो बेल मिलना मुश्किल है। तमिलनाडु। नेक्स्ट इज Which state has stopped in the installation of the solar pumps under the PM कुसुम स्कीम? So जो ऐसी स्टेट जिसने PM कुसुम स्कीम के अंडर सोलर पंप के इंस्टॉलेशन में टॉप किया है वो है हरियाणा। और जहाँ सोलर पंप्स होंगे वहाँ हरियाली होगी, जहाँ हरियाली होगी वो हरा होगा और वो हरियाणा होगा। नेक्स्ट इज ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। हु इज़ द ऑथर इज जुम्पा लहरी। Planetarium Innovation Challenge has been launched by, so it is launched by MyGov India, which is under Ministry of Information and Technology. According to the Global Trade Outlook, by which year India will become the world third largest importer after China and US, with a share of 5.9% in global imports. So India जो है 2050 तक जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर बन जाएगा और ये चाइना और यूएस को जो है वो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रहेंगे और थर्ड बाकी कंट्रीज़ को पछाड़ के इंडिया विल ओवरटेक। साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड इस बार हैज़ बीन गिवन टू 8 पर्सन्स और इसके नाम जो हैं वो आप स्क्रीन से देख सकते हैं। रस्किन बॉन्ड, डॉक्टर एम लीलावती, देन शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, इंदिरा पार्थसारथी, विनोद कुमार, डॉक्टर तेजवंत सिंह गिल, डॉक्टर बालचंद्र नेमाडे, स्वामी रामभद्राचार्य। Next is who is appointed as the Director General of National Cadet Corps? Answer is Gurbir Pal Singh is now the Director General of NCC. Next is who is honored with the Ramakrishna Bajaj Memorial Global Award recently? Answer is Gautam Adani, and we can remember it like Ramakrishna. Krishna is the name of a god who likes butter so much, and butter is the product of milk, and we get milk from cow, and another name of cow is Gau. From Gau we get butter, and butter is a favorite edible thing of Lord Krishna. So Ramakrishna Bajaj Memorial Award has been conferred to Gautam Adani. Which state has announced to open Digital De-Addiction Center for Children? Very interesting. So Digital De-Addiction के लिए वो स्टेट करेले का जूस पिलाएगी बच्चों को, और बच्चे जो हैं वो जो हैं उनका डिजिटल लत जो है वो छूटेगी। It's just imagination, don't take it seriously. So the answer following this trick is Kerala. Where was the 76th session of UNGA held recently? It took place in New York. PM Modi visited New York for that. Which of the following city has been named as UNESCO's World Book Capital for 2023? So remember 2023, the answer is Accra, ACCRA. Next is which language has been removed from the status of official language of Afghanistan by Taliban recently? उज़्बेक जो भाषा है वो तालिबान ने उससे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा छीन लिया है। नाउ उज़्बेक इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान एंड इट हैज़ बीन डन बाय तालिबान। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 2021 में इंटरनेशनल इको लेबल के द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस किस को मिला? सो द आंसर इज़ एक तमिलनाडु, एक पुडुचेरी। तमिलनाडु में जो बीच है उसका नाम है कोवालम एंड पुडुचेरी में एडन। Who has been appointed as the Chief of Indian Air Force? So the answer is Vivek Ram Chaudhary by replacing R.K.S. Bhadoria. Which state government has recently launched Millet Mission? So the only state which can do that is Chhattisgarh, because उसके पास 36 प्लांट हैं जो मिलेट्स पे काम करेंगे, मिलेट्स को प्रोसेस करेंगे। There is no other state who has that much capacity of 36 plants. Humongous, right? It's just imagination. Don't take it seriously again. So answer is Chhattisgarh.
आनंद कुमार द फाउंडर ऑफ सुपर 30 वाज कन्फर्ड विद, तो सुपर 30 के फाउंडर थे आनंद कुमार ही, देर इज़ ऑल्सो अ पिक्चर ऑन हिम, इफ़ यू हैवंट सीन यू कैन सी। आनंद कुमार जो हैं वो एक फेमस मैथमेटिशियन है, और एक आदमी को अगर मैथमेटिशियन बनना है तो उसमें क्या खूबीज होना चाहिए मेरे अनुसार, अगेन ये रियलिटी नहीं है, उसे स्वामी होना चाहिए, अपने काम का स्वामी, डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। नेक्स्ट इज़ उसे ब्रह्मचारी होना चाहिए, तभी वो लगा पाएगा अपना ध्यान मैथ्स पे। तो दो चीज़ें ये, तीसरी कोई नहीं है। तो द आंसर इज स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड। नेक्स्ट इज विच एयरपोर्ट हैज़ बीन declared as a customs notified airport by the Central Board of Indirect Taxes and Customs? Answer is Kushinagar Airport. Kushinagar is a same place where Gautam Buddha took his last breath. So the answer is Kushinagar Airport. It has been declared as customs notified airport. Artificial intelligence based language translator software project Udan has been launched by which Indian institute? So IIT बॉम्बे है जिन्होंने एक ट्रांसलेटर बनाया है जो कि काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और ये लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन करता है, और उसका नाम है प्रोजेक्ट उड़ान। इसे हम ऐसे याद रखेंगे, सपोज देयर आर मैनी पर्सनस, बहुत सारे ऐसे पर्सनस हैं जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, एंड दे आर इन अ सेम प्लेस, और जब कोई आके जोर से चिल्लाएगा यहाँ बॉम्ब है, तो दे ऑल विल गेट अटेंटिव, दे ऑल विल गेट पैनिक। सो जब एक बॉम्ब वर्ड आ जाता है ना, तो सारी लैंग्वेज एक जैसी लगती है, तो फिर कोई परवाह नहीं मारता कि बॉम्ब जो है वो कौन सी लैंग्वेज में बोला है। सो आंसर हियर इज IIT बॉम्बे। यू कैन रिलेट इट विद लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Who was listed among Time magazine's 100 most influential peoples? From India there were 3, our PM Narendra Modi, Mamata Banerjee, Aadhar Poonawala. Recently, the Government of India inaugurated Center of Excellence on Offshore Winds in collaboration with which country? So answer here is Denmark. Most of the times जब environment के related projects आएंगे या for green energy के related projects आएंगे तो आंसर डेनमार्क ही होगा. Not for all the times but for most of the times. और इसको हम कैसे याद रखेंगे? ऑफशोर विंड्स जब आएंगी तो विंड्स कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, इसके लिए हमें वी नीड मार्क्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरह के मार्क्स. सो द आंसर इज डेनमार्क. फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद इसरो इज स्काईरूट एरोस्पेस. Which country has hosted 2+2 ministerial dialogue for the first time? ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इंडिया के साथ 2+2 ministerial dialogue जो है वो होस्ट किया. बुलेट्स ओवर बॉम्बे किसके द्वारा लिखी गई है? सो इट हैज़ बीन पेन डाउन बाय उदय भाटिया. वेलकम पिक्चर आपको याद होगी, उसमें उदय भैया भी आपको याद होंगे. वो थोड़ा सा गुस्सा उनको आ जाए तो ही स्टार्टेड फायरिंग बुलेट्स, और जो वो बुलेट्स हैं उससे हम याद रखेंगे बुलेट्स ओवर बॉम्बे, बुलेट्स ओवर मुंबई. जस्ट इमेजिन. एंड आंसर इज उदय भाटिया. Who is appointed as the president of the Olympic Council of Asia? So president of the Olympic Council of Asia is Raja Ranadhir Singh. Olympic Council of Asia President Raja Ranadhir Singh. UNESCO Literary Prize for Innovation in Education is awarded to which educational institution? यूनेस्को ने अपना प्राइज़ जो कि इनोवेशन के लिए होता है एजुकेशन में, वो दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS. शून्य कैंपेन स्टार्ट किया है किसने, जो कि रिलेटेड है ज़ीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल से, उन्हें प्रमोट करने के लिए. आंसर इज नीति आयोग. अंकुश इज़ अ न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन. तो ये किसने अनाउंस किया, कौन सी कंट्रीज़ की जो है ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है? नेम सजेस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर A, UK for UK and US for US. So next is the government of India is set to host the first ever global Buddhist conference in. Answer is Bihar. So it is not so difficult to remember Bihar with the name of Buddhism. Name of the project that was recently launched by Nitin Gadkari to ensure road safety and reduce accidents in Nagpur using AI. So Nitin Gadkari ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जो कि
जिसकी कोर टेक्नोलॉजी होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये नागपुर में काम करेगा और इट विल इंश्योर रोड सेफ्टी। तो इसका आंसर होगा आई रास्ते। कैसे याद करें? इंडिया में बहुत से एक्सीडेंट जो हैं वो रोड्स की वजह से होते हैं, बैड रोड्स एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू रोड्स। रोड्स, वी से रोड्स as raste in Hindi, so it's clear, I raste. Recently appointed as president of International Road Federation India, आंसर इज सतीश पारिक जो है उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड MOU फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट विद इंडिया। सो इंडिया और इटली जो है वो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए MOU कर रहे हैं, इन्होंने किया है। सो आंसर इज इटली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ टाटा स्टील हैज़ कमीशनड इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन कैप्चर प्लांट। टाटा स्टील के साथ क्या हुआ, अगेन ये मेरी कहानी है, अपनी कहानी है। उनका एक प्लांट था जिसमें शेड हो गया, जमशेदपुर शेड हो गया, और उस शेड में से निकली कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए उन्हें प्लांट लगाना पड़ा। कहाँ? जहाँ शेड हुआ था, जमशेदपुर में। नेक्स्ट इज विच यूटी हैज़ लॉन्च्ड 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी। सो द आंसर हेयर इज़ जम्मू कश्मीर। 1 ग्राम पंचायत, 1 ग्राम पंचायत, और हर एक ग्राम पंचायत के लिए एक DG पे सखी, और आंसर उसका जम्मू कश्मीर। My Meg program was launched by which government on World Democracy Day to promote participatory democracy? So the answer is in question only My Meg, Meghalaya. My Meghalaya. The answer is Meghalaya. Which state government has come up with Matrabhumi Yojana? Matrabhumi Yojana it is, sorry. A new rural infrastructure scheme. So the answer here is Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च की है जो कि रिलेटेड है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से, और उस स्कीम का नाम है मातृभूमि योजना। पे नाउ विद विच इंडिया विल लिंक ऑफ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज अ पेमेंट इंटरफेस ऑफ विच कंट्री। सो इट पे नाउ बिलोंग्स टू सिंगापुर। एयरक्राफ्ट was leased by Indian Navy to Mauritius under India's Sagar initiative. So answer here is Dornier. It can also be asked in another way, like which aircraft has been leased by Indian Navy to Mauritius. Dornier has been leased by Indian Navy to Mauritius under which mission? So then answer would be Sagar mission. India is participating in the 6th exercise Peaceful Mission 2021. Which country is the host of the exercise? So India participate करेगा 6th exercise Peaceful Mission 2021 में। कौन सी कंट्री से होस्ट करने वाली है? सो ये तो सितंबर का करंट अफेयर है, अभी तक तो हमें क्लियर है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा शांति फैलाई, तो उससे आप याद रख सकते हैं रशिया। In which country the first ever in-person Quad Leaders Summit is going to be held? So before that all the Quad meetings held virtually, but now for the first time it would be in person, and it would take place in USA. Which Indian Navy ship is participating in the bilateral maritime exercise with the Sudan Navy in the Red Sea of the Sudanese coast? आंसर इज INS तबर। INS तबर पार्ट लेगी सूडान नेवी के साथ एक एक्सरसाइज में, एक मैरीटाइम एक्सरसाइज में, जो कि होगी रेड सी में। कंट्री टू हैव इट्स फर्स्ट हिंदू वुमेन सिविल सर्वेंट इज नन अदर देन पाकिस्तान। नेक्स्ट इज Recently, Union Minister of Tribal Affairs has announced to start Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana to cover 36,000 villages across the country. Which district stands first? So, recently हमारे ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं या जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है वो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू करेगी, जिसमें 36,000 विलेजेस कवर किए जाएंगे। तो जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है इसमें वो है चाचर, जो कि असम में पड़ता है। नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च प्रगति मोबाइल एप्लीकेशन फॉर इट्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स। सो LIC ने प्रगति मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जो कि इनके डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए है। GI टैग मिला है सिरारखोंग चिली एंड
तामेंगलोंग, ऑरेंज को, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? सो द GI टैग फॉर दिस हैज़ बीन गिवन टू मणिपुर. एंड हाउ वी कैन रिमेंबर इट? इट्स लाइक just take 3 words, add C, it would become ONGC. ONGC is a Maharatna company which requires a humongous investment, and that investment would come in the form of money. So बहुत सा मनी चाहिए ONGC जो कि महारत्न है उसे रन करने के लिए. और द आंसर इज एंड द आंसर वुड बी क्लियर, राइट, मणिपुर. वाई वी आर जस्ट रिमेंबरिंग इट बाय अ ट्रिक? बिकॉज अगर हम देखें बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्हें अभी रिसेंटली चिल्ली के लिए GI टैग मिला है, तो उस चिल्ली को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट. Next is Cabinet Committee on Security has approved the procurement of 56C 295 MW transport aircraft for the IAF from which of the following company? So there are very few companies who manufacture transport aircraft. So one of them is Airbus. So the answer here is Airbus. Airbus would manufacture 56C 295 MW aircraft, right? So the answer is Airbus. State to declare Cooper Mashir, locally known as Katle, the state fish, to highlight the importance of fish. So answer is सिक्किम. सिक्किम ने कूपर मशीर, जिसे कटले के नाम से भी जाना जाता है, उसे जो है वो एक स्टेट फिश का दर्जा दिया है. तो हाउ वी वुड रिमेंबर इट? अगर हम सिक्किम को देखें तो वो इंडिया मैप में थोड़ा ऐसा करके निकला है, और सिक्किम ने ओपन चैलेंज दिया है चाइना को. ये मेरी कहानी है, इट्स नॉट रियलिटी. कि वी एज ए इंडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी कॉन्फिडेंट. अगर तुम में दम है तो हमें इंडिया से कट करके दिखाओ, काट के दिखाओ, फिर दिखाएंगे तुम्हें. तो कटले, सिक्किम, स्टेट फिश, राइट. Who has won the Asian Snooker Championship 2021 for the second consecutive time? Answer here is Pankaj Advani. Which bank has won first prize in राज्य भाषा कृति पुरस्कार? पंजाब नेशनल बैंक को चौथी बार इन अ रो पहला प्राइज़ मिला है राजभाषा कृति पुरस्कार में, क्योंकि दे डू अ वेरी स्प्लेंडेड वर्क इन मोटिंग राजभाषा. स्पेस एक्स का ऐसा कौन सा 3 दिन का मिशन है जिसमें ऑल टूरिस्ट क्रू विल गो टू द स्पेस? सो द मिशन का नाम है इंस्पिरेशन 4. हु इज़ द न्यू चेयरमैन कम MD ऑफ द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड? सो शी इज़ अलका नांगिया अरोड़ा. I think it's a repeated question, so but it's good, you would revise it here only. National Small Industries Corporation, National Small Industries Corporation, अलका नांगिया अरोड़ा. एक पहल ड्राइव जो कि कंट्री में लॉन्च की गई है, वो किसने की है? इट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस. एक पहल. The 15th edition of the Indian Nepal Surya Kiran exercise would take place where? It will take place in Uttarakhand. And we all know that Surya Kiran is exercise between India and Nepal. And 15th edition, thing to remember is 15th edition कहाँ हुआ उत्तराखंड में, right? Next is BHEL has commissioned India's largest solar photovoltaic plant of 25 megawatts in which of the following states? So the answer is आंध्र प्रदेश. BHEL ने अपना इंडिया का सबसे बड़ा सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट सेटअप किया है जो कि 25 मेगावाट का है. ये कहाँ पे सेट किया? इट इज़ आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल टू कीप अवर बीचेस क्लीन? सो इट टुक प्लेस इन विशाखापट्टनम. इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे विशाखापट्टनम, आपको याद रखना है. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वर्ल्ड बैंक हैज़ अनाउंस टू डिसकंटिन्यू. सो अब से वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट को जो है वो नहीं पब्लिश करेगा, और उसका आंसर रहेगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. अब से नहीं आएगी. और एक कहानी के तौर पे आपको बताता हूँ जो कि मेरी अपनी कहानी है, कि वर्ल्ड बैंक को ऐसा लगता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट होना चाहिए. इजी है वो करने में या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता. और जो मेरे को लगता है वो आपको इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू. रिसेंटली द 21st मीटिंग ऑफ SCO हेल्ड इन तजाकिस्तान. और इसे कैसे याद रखेंगे? 21st मीटिंग है, 21st सेंचुरी, बहुत ही ताज़ी सेंचुरी है हमारी, और ताज़ी है इसलिए तजाकिस्तान. सो 21st ही नहीं याद रखना है, 21st क्या है? SCO भी याद रखना है. और जब आप पढ़ेंगे कि 21st SCO मीटिंग कहाँ होगी, तो 21st से आपको जब आप ऑप्शन देखेंगे तो तजाकिस्तान वुड स्ट्राइक इन योर माइंड. हु इज़ द न्यू चेयरमैन कम MD ऑफ द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड? एज आई टोल्ड यू, रिपीटेड.
who created national record in 1500 meter event at the 60th National Open Athletics Championship. Things to remember here is firstly that the event was 1500 meter event, next is it was 60th, and the next is National Open Athletics Championship was the name of the event, and then the answer is Har Milan Kaur Bains. Swachhta Pakhwada 2021, a pledge to cleanliness, has been launched at which of the following ports? So the answer is Kochi Trust Port. कोचिन ट्रस्ट पोर्ट में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 जो कि क्लीनलीनेस से रिलेटेड है वो शुरू किया गया। कोचिन से मेरे को एक और चीज़ याद आती है कि जो कोचिन एयरपोर्ट है, पोर्ट नहीं एयरपोर्ट, पहला ऐसा एयरपोर्ट बना वर्ल्ड में विच कम्प्लीटली रन्स ऑन सोलर एनर्जी, एंड इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट टू इंडिया। नेक्स्ट इज which the little thing is that yes, the government aims to electrify 50% of the port equipment with renewable energy by 2020. Here 50% is all over India. जो 50% इक्विपमेंट्स होंगे सभी पोर्ट्स में वो 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी से रन करेगा। Which of the following organization has launched Planetarium Innovation Challenge for startups and the tech entrepreneurs? It's MyGov India. It is a repeated question. Who has released a report titled United in Science 2021 for the collection of the latest climate science information? So the name of the report is United in Science 2021. It is related to climate science information, and with that it is clear that World Meteorological Organization is the answer. Approved FDI limit for telecom sector from automated route now is 100%. Who is the author of the book released by Union Defence Minister Rajnath Singh titled Shining Sikh Youth of India on 400th birth anniversary of Guru Tej Bahadur? So 400th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो गुरु तेज बहादुर की, उस पर यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बुक रिलीज़ की। उस बुक का नाम था शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। तो पूछा गया है कि हु इज़ द ऑथर, द आंसर इज़ डॉक्टर प्रभलीन सिंह। नेक्स्ट इज़ रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है? रिपोर्ट इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, इट्स नीति आयोग, रिमेंबर इट। With which organization नीति आयोग has launched अटल इनोवेशन मिशन स्पेस चैलेंज 2021? सो स्पेस की बात है तो इसरो तो होगा ही, नीति आयोग भी है और CBSE भी है। सो इन तीनों ने लॉन्च किया है अटल इनोवेशन मिशन स्पेस चैलेंज 2021। Who has become India's 70th चेस्ट ग्रैंड मास्टर? तो 70th चेस्ट ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो हैं आर राजा ऋत्विक। सो 70th चेस्ट ग्रैंड मास्टर, तो 70th जो है वो एक राउंड में टर्म है, बहुत ही ऐसे गिने चुने आदमी हैं जिन्हें जैसे 10th रैंक बनने का मौका मिलता है, या 20th या 30th या 70th। रिसेंटली 70th, और आपको पता है कि एक पिक्चर है RRR हु इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल ऑल्सो, एंड यू विल सी हियर RRR। सो 70th चेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं आर राजा ऋत्विक, राइट। व्हाट वाज द थीम? सो अगर आपको 69 आए, 68 आए या 67 आए तो उसका आंसर RRR नहीं होगा। और आपको पता है कि अब 80th जो है दैट वुड टेक टाइम टू कम, तो तब तक यू कैन रिमेंबर 70th विद RRR। What is the theme of the International Week of Deaf, which is observed every year? So the answer is celebrating thriving deaf communities. Next question is a device that can generate electricity from water drops, raindrops, water streams and ocean waves is designed by which IIT? So ये दिल्ली वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में बहुत सा पानी है, वाटर क्लॉगिंग होती है बरसात में, तो वो देखते हुए इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसी डिवाइस बनाएं, और दिल्ली वाले तो हम हैं ही। सो नेक्स्ट इज इंडिया इज़ रैंक्ड 64th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। हु रिलीजेज इट? सो इंडिया का रैंक इस बार है 46th। इंडिया हैज़ क्लिम्ड 2 रैंक्स, बिफोर इट वॉज 48। So this rank is released by World Intellectual Property Organization WIPO. Country recently to become a member of SEO is
ईरान। सो एससीओ का मेंबर बनने के लिए एक रेस लगा था, इसमें कहा था रन रन रन, वो जो सबसे पहले नंबर पे आया वो था ईरान एंड आंसर इज ईरान। विच state which inaugurated South Asia's largest product development center digital hub to have 15,000 startups by 2026। केरला वाले पीते हैं करेले का जूस और उनका दिमाग हो जाता है बहुत तेज़, और वो इसीलिए 2026 तक दे हैव kept a target to have 15,000 startups or that would take place in their digital hub, right? Recently, which larger state has topped in third state food safety index of Food Safety and Standard Authority of India FSSAI के फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन सी स्टेट ने तीसरा स्थान हासिल किया है among larger states? आंसर इज गुजरात। Who is the chairman of the group of ministers constituted by the Centers for Better Implementation of the Welfare Schemes of SC, ST and OBC minorities and women's के लिए? तो राजनाथ सिंह जो हैं वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन होंगे जो कि ये देखेंगे कि जो स्कीम्स हैं SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के लिए वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। नेक्स्ट इज़ कौन सी कंट्री है जिसमें अभी अभी कुम्ब्रे वाइजा वोल्केनो हैज़ erupted? So answer is Spain. How you can remember it? Let this words resembles with cucumber, और cucumber जो है उसे कहते हैं काकड़ी, and काकड़ी is straight in shape and pen is also straight in shape, though little in diameter but it's straight in shape. So Cumbre Vieja volcano, Spain. Which country participated with India in maritime exercise Samudra Shakti conducted at Sunda State? Answer is Indonesia. We all know Samudra Shakti does with Indonesia and it was the third edition. And ये कहाँ पे हुई? Sunda State में. Who has been appointed as WHO's ambassador for global health financing? Answer is Gordon Brown. WHO's ambassador for global health financing, Gordon Brown. With CISF, which CISF official has become the fastest Indian to summit two peaks located in Africa and Russia? So अफ्रीका और रशिया की टू पीक्स को सबसे फास्टेस्ट वे में सबमिट करने वाला कौन सा CISF ऑफिशियल बना है? आंसर इज ग्रीता समोटा. So this was the third video of the series of best current affairs of September. So next video, that is fourth, would come up in 1 or 2 days, and after that there would be a little change, that is I would make the videos of the recent months first, like for April, not for April, for March, and then we'll continue the remaining months consecutively, like October, and the remaining months would be covered in a way. So there would be two ways to cover. First, I will cover the recent, and also I will continue to take up this series, like September would be completed in 2 or 3 days, then October, then like that. So the next would come is March. So thank you for giving your time and watching the video. Hope you have liked it, and you can just watch this video again and again to check yourself. And also, if you are reading current affairs from some other source, then you can check your knowledge here. And again, after reading current affairs from here, you can just go to the another channel, another site, and check your knowledge. That is your knowledge getting better, and are you able to give the answers or not? So thank you.